Good morning everybody. Welcome to the biology class. Today we will study the topic the Lac Operon. My dear student, what is this Lac Operon? Actually Lac Operon represent the control of the gene expression in case of the prokaryote. So dear student, this gene expression, actually each cell in the human contain the genetic information in the form of the genes which is required for the growth and development of the human body. Out of these genes, dear student, the genes which are present in our body, out of these genes, some of the genes are expressed all the times. कुछ ऐसे जीन्स होते हैं because they are involved in a very important metabolic reaction, so they are expressed all the time, but still there are certain genes which are expressed time to time. So when there is a requirement, then only then some of the genes are expressed here. So they are switched on or off at the time of the need. कि जब भी इनको जरूरत पड़ती है उन जीन को एक्सप्रेस करने की, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे वो एक्सप्रेस जो है वो करते हैं. सो दैट जीन एक्सप्रेस एट सर्टेन टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे जो जीन एक्सप्रेस करेगा या वो बंद होगा. सो दिस इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ द एसोसिएटेड जीन. तो जो जीन होते हैं, जो स्ट्रक्चर जीन होते हैं, दे आर एसोसिएटेड विद सम अदर कंट्रोलिंग जीन्स. तो जीन्स को भी कंट्रोल करने वाले जो वो जीन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. सो वी विल स्टडी this gene expression in case of the prokaryotes. Now the question comes in our mind that what is a operon? Operon होता क्या dear student? आपको पता है actually operon, it is a fragment of DNA. Now DNA consists of genes, so I must you can say that operon is a group of genes that are transcribed at the same time. My dear student, there is a question for you. In case of human being, आपने सुना है we are monocystonic in nature. Transcription जो पढ़ी थी, we have studied monocystron and polycystron. So in case of human being, only one gene are expressed at a single time, but here we are talking about expression of more than one gene. So we will take the example only in case of the prokaryote. So what is a operon? Operon is a group of genes that are transcribed at the same time and they usually control the biological processes. ये biological processes को control करते हैं. तो dear student, operon is a fragment of DNA which consists of a group of genes. They are expressed at the same time. एक ही समय पे जो होते हैं ये सारे के सारे जो है वो express जो है वो करते हैं. So you can see here, you can see easily that there is a name associated, Jacob, Maynard and Lauf. तो Jacob and Maynard जो दो नाम है और तीसरा आपका Lauf जो नेम है, they are associated with this model. Actually this Lac Operon की जो बात करते हैं, this model was of gene expression was given by Jacob and Maynard. इन दोनों ने दिया था. Lauf is having a great role in this operon here. We will discuss one by one here. So you can see that this Lac Operon, क्यों इसे lac word represent lactose here. Lactose is a sugar that is generally present in the milk. So this is lactose sugar, and operon, you know that this fragment of this DNA which consists of a group of genes, they are expressed. So here Lac Operon नाम क्यों दिया गया? क्योंकि it has been seen that in case of E. coli bacteria, when lactose is added, only then the operon is functional. जो operon है, group of genes हैं, they will only function when lactose is added. So we will study here. So Lac Operon consists of 3 genes. एक मैं डायग्राम आपके सामने जो वो दे रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप इस पिक्चर को देखें. If you study this picture here, so this represents the structure of operon. So operon consists of basically structural gene here. तो यहाँ पे जो Lac Operon की बात, तो Lac Operon जो है इसमें 3 जीन है basically, X, Y and Z gene are there. तो 3 genes are there in case of the Lac Operon. और इन तीनों के तीनों जीन जो है, they are transcribed and after translation they form different type of the proteinaceous enzyme. ये अलग तरह के जो proteinaceous enzyme है उनकी formation करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें यहाँ पे ये जो आपका Z जीन है, ये Z जीन है, Y जीन है, X जीन है,
ये जो Z जीन है बेसिकली इट प्रोड्यूसेस बीटा ग्लाइकोसाइडेज, मतलब जब भी ट्रांसक्रिप्शन होगी ये mRNA बनाएगा और mRNA जो है फर्दर जब प्रोटीन बनेगी तो एक एंजाइम बनाता है बीटा ग्लाइकोसाइडेज, तो बीटा ग्लाइकोसाइडेज बनाएगा। यहाँ पे मैं बी लिख देता हूँ, यहाँ पे इसका फर्स्ट लेटर लिख देता हूँ, बीटा ग्लाइकोसाइडेज बनाएगा। देयर इज ए जीन वाई इज देयर, वाई it again it will be transcribed and it will form a messenger RNA and it will form an enzyme permease। देखिए यहाँ पे एक और एंजाइम बन रहा है permease, तो मैं यहाँ पे P लिख रहा हूँ। and this X is responsible for trans-acetylase, एक और एंजाइम बनेगा यहाँ पे trans-acetylase। so ये स्ट्रक्चर जीन है Lac Operon में। basically this Lac Operon it is this model was given in case of the prokaryotic bacteria, E. coli के अंदर ये मॉडल दिया गया। तो E. coli के पास स्ट्रक्चर जीन है X, Y and Z। Z will produce is responsible for the production of the beta glycosidase, Y will produce the permeases and X will produce the trans-acetylases। so my dear student let me tell you one thing that this Z gene, जो ये Z gene है ये बना रहा है आपका beta galactosidase। so basically ये जो beta galactosidase है basically this enzyme mainly hydrolyze lactose into the glucose and galactose। तो इसका मेन काम क्या, beta galactosidase किस पे काम करेगा, ये लैक्टोज को तोड़ने का काम करता है। इट मींस देखो ये जो जीन्स हैं बेसिकली ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जीन तभी एक्टिवेट होगा जब हमारे पास लैक्टोज प्रेजेंट होगा। तो ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज विल ओनली बी प्रोड्यूस्ड व्हेन लैक्टोज विल बी देयर। तो ये लैक्टोज को ब्रेक डाउन करेगा किसमें, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में करेगा। बट माय डियर स्टूडेंट क्योंकि हम यहाँ पे रेगुलेशन की बात कर रहे हैं तो ये जो ऑपेरॉन की अगर हम बात करें, दिस ऑपेरॉन बेसिकली इट इज एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चरल जीन। तो स्ट्रक्चरल जीन की मैंने बात आपको बताई यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, आप देयर इज ए प्रमोटर साइट इज देयर, पी साइट प्रमोटर साइट इज देयर, देयर इज ऑपरेटर साइट इज देयर। सो ये प्रमोटर साइट कौन सी साइट होती है, यू नो बेटर व्हेन ट्रांसक्रिप्शन अगर यू नो दैट प्रमोटर इज द साइट वेयर दिस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम विल अटैच। तो ये एंजाइम को जब भी ये ट्रांसक्राइब होने एक्स वाई एंड जेड तो एंजाइम जो जुड़ेगा वो प्रमोटर साइट पे जुड़ेगा। बट इफ यू कैन सी हियर बिटवीन प्रमोटर एंड स्ट्रक्चर जीन यहाँ पे देयर इज ऑपरेटर जीन। तो दिस इज ए कंट्रोलिंग फैक्टर। ऑपरेटर जीन जो वो कंट्रोल करता है। देखो मैंने कहा कि जो आपका जो एंजाइम है जो आप ट्रांसक्रिप्शन आपने पढ़ी होगी आरएनए पॉलीमरेज कहां जुड़ेगा, प्रमोटर पे। नाउ इट विल मूव ऑन द स्ट्रक्चर जीन। तो एक्स वाई जेड को इसने ट्रांसक्राइब करना है, लेकिन ऑपरेटर जो है इट विल डिसाइड, ये डिसाइड करेगा कि यहां पे जो एंजाइम है दैट विल बी मूव और दैट विल नॉट मूव। एंड ये ऑपरेटर जो है ये इस फंक्शन को ऑन एंड ऑफ कर सकता है। लेकिन ये ऑन एंड ऑफ क्यों करेगा, अब यहाँ पे बात आती है, यहाँ पे ये ऑपरेटर देखिए ये ऑन एंड ऑफ क्यों करेगा। डियर स्टूडेंट देयर इज अनदर जीन रेगुलेटरी जीन, यहाँ पे एक आई जीन करके अगर आप देखिए यहाँ पे आई जीन, ये दिस इज कॉल्ड एज दी रेगुलेटरी जीन हियर। सो ये आई जीन जो है दिस इज द रेगुलेटरी जीन। बेसिकली इट प्रोड्यूस ए इनहिबिटर प्रोटीन। ये क्या पैदा करता है, एक इनहिबिटर प्रोटीन। तो रेगुलेटरी जीन इनहिबिटर प्रोटीन पैदा करेगा। दिस इनहिबिटर प्रोटीन विल बाइंड एट द ऑपरेटर साइट। तो जनरली क्या होता है ये इनहिबिटर प्रोटीन कहां पे अगर आप देखें यहाँ पे ये बाइंड हो जाती है किसके साथ में, ऑपरेटर के साथ में। तो जब ऑपरेटर के साथ ये बाइंड हो जाती है तो दे स्टॉप, इट एक्ट एज ए बैरियर। मेरी बात समझ, ये बैरियर का काम करेगी। तो जब एंजाइम आपका प्रमोटर साइड पे लगेगा इट विल नॉट मूव टू दी स्ट्रक्चर जीन, ये पहुंच नहीं पाएगा क्योंकि ये जो साइट है रिप्रेसर प्रोटीन है, ये रिप्रेसर प्रोटीन इसको आगे जाने से मना कर देती है या रोक देती है। सो डियर स्टूडेंट यहाँ पे कुछ एक फैक्टर्स आ जाते हैं कि ऑपेरॉन मैंने आपको बता ही दिया। तो लैक ऑपेरॉन कंसिस्ट ऑफ 3 genes X, Y and Z. Z produce beta galactosidase. Actually, this beta galactosidase जो है this is responsible for the breakdown hydrolysis of this lactose into the glucose and galactose. Second point is that my dear student देखो E. coli की कॉलोनी एवं लैक्टोज इज एब्सेंट। जब लैक्टोज है ही नहीं, मान लो एक पेट्री डिश है, उस पेट्री डिश के अंदर E. coli प्रेजेंट है, E. coli बैक्टीरिया है और हम उसके अंदर मिल्क नहीं ऐड करते हैं, हम मिल्क को ऐड नहीं करेंगे उसके अंदर, देन व्हाट विल हैपन व्हेन देयर इज नो मिल्क। जब मिल्क नहीं होता है तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, ये जो अगर आप देखें यहाँ पे जो रेगुलेटर जीन है दे विल प्रोड्यूस ए रिप्रेसर प्रोटीन। मैंने कहा था ये एक एमआरएनए बनाएंगे और एमआरएनए जो है एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाएंगे और रिप्रेसर प्रोटीन कहाँ पे बाइंड कर जाएगी, ऑपरेटर पे। सो हियर मैं यहाँ पे प्रमोटर साइट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस इज द प्रमोटर साइट हियर। ये आपकी पी साइट आ गई, ठीक है, जहां पे आपका एंजाइम में लगना है। अब एंजाइम प्रमोटर पे जुड़ेगा ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंड इट हैज टू बी रीच एट दी स्ट्रक्चरल जीन, ये स्ट्रक्चरल साइड पे पहुंचना है ZYA को ट्रांसक्राइब करने के लिए। बट यहां पे क्या रिप्रेसर प्रोटीन विल अटैच एट दी ऑपरेटर, सो
यहाँ पे जो ये जीन है, ये एक्स वाई एंड जेड, दे विल नॉट प्रोड्यूस मैसेंजर आरएनए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ये आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। तो जब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो प्रमोटर साइड पे जुड़ेगा नहीं, प्रमोटर साइड पे तो स्कैन नहीं कर पाएगा, तो ये ब्लॉक कर देगा आरएनए को। क्या करेगा, ये ब्लॉक कर देगा। आरएनए एक बार जुड़ा तो इट हैज टू मूव ओवर दी स्ट्रक्चरल साइड, तो ये मूव नहीं कर पाएगा। ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है आरएनए पॉलीमरेज को ये क्या करेगा, यहाँ पे ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है रोक लेगा, एंड आरएनए पॉलीमरेज विल फेल टू ट्रांसक्राइब दिस ZYA, तो ये इसको ये ट्रांसक्राइब नहीं कर पाएगा। तो दिस इज द कंडीशन व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट। सो व्हेन लैक्टोज इज नॉट देयर in the medium, then what will happen? When lactose is absent, then this regulator gene will produce a repressor protein that will bind the operator gene and it will block the RNA polymerase. ये RNA polymerase को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, माने ट्रांसक्रिप्शन करने से इसे क्या करेगा और रोक देता है। दिस इज द फर्स्ट केस, ठीक है। सो हियर इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज शुगर एक्चुअली these genes are not transcribed. So second case is there, dear student, when lactose is present. अब दूसरा केस क्या आ गया यहाँ पे, जब आपके लैक्टोज यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखो लैक्टोज जो प्रेजेंट है, तो नाउ व्हाट विल हैपन, दिस अब आपको पता है आई जीन क्या पैदा करेगा, ये रिप्रेसर प्रोटीन पैदा करेगा। अब हमने क्या डाल दिया, यहाँ पे लैक्टोज डाल दिया, देखिए लैक्टोज डाल दिया, लैक्टोज ये। नाउ दिस लैक्टोज इट एक्ट एज ए इंड्यूसर, ये क्या एक्ट करता है, इंड्यूसर एक्ट करता है। इट विल बाइंड, ये येलो कलर में जो बताया वो ये लैक्टोज बनाइए, तो लैक्टोज जो है वो रिप्रेसर के साथ बाइंड कर देगा। आपने देखा पिछले डायग्राम में, हमने देखा ये जो ब्राउन कलर में बताया हुआ, दिस इज द रिप्रेसर प्रोटीन। अब इस केस में क्या है, ये जो लैक्टोज है, ये लैक्टोज आपको देख रहे होंगे, ये येलो कलर में जो बताया, दिस इज द लैक्टोज। तो लैक्टोज शुगर जो है इट एक्ट एज ए इंड्यूसर एंड इट विल बाइंड विद दी, ये बाइंड कर जाती है, किसके साथ बाइंड कर जाती है, ये बाइंड कर जाती है रिप्रेसर प्रोटीन। एंड नाउ वंस व्हेन इट बाइंड विद द रिप्रेसर प्रोटीन इट फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स दैट इज कॉल्ड एज द इंड्यूसर रिप्रेसिबल कॉम्प्लेक्स। इसी को क्या बोलते हैं हम, इंड्यूसर IRC, इंड्यूसर रिप्रेसिबल कॉम्प्लेक्स। तो ये जो इंड्यूसर रिप्रेसिबल कॉम्प्लेक्स है, नाउ इट फेल टू अटैच विद ऑपरेटर साइड, ये ऑपरेटर साइड के साथ नहीं जुड़ पाता। सो व्हाट हैपेंड, RNA पॉलीमरेज जो है एंजाइम, इट विल अगेन बाइंड एट द P साइड, ये प्रमोटर साइड पे बाइंड अप करेगा एंड इट विल कॉज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ZY and A। अब ZYA जो अपने आप को क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, और ये जो तीन तरह के जो एंजाइम है वो ट्रांसक्राइब कर देंगे। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो जीन्स है उनका जो फंक्शन है स्विच ऑन, हम कह सकते हैं कि ये जीन का जो फंक्शन है वो स्विच ऑन हो गया। यहाँ पे क्यों ऑन हो गया, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इंड्यूसर। तो यहाँ पे लैक्टोज की ऐड करने से रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो लैक्टोज या इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बना देती है, ड्यू टू विच इट फेल टू बाइंड एट दी प्रमोटर साइड, ये प्रमोटर साइड पे नहीं जुड़ पाता, ड्यू टू विच व्हाट हैपन, RNA पॉलीमरेज इजीली ट्रांसक्राइब ZY and A। ये ZY and A को क्या कर देता है, वो ट्रांसक्राइब करने में हेल्प जो है वो करता है, ठीक है।